गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। His Holiness Jagat Guru Sri Shivratri Desikendra Mahaswami Ji, Sri L. Nagendra Ji, Professor M.H. Dhananjay Sahab, Dr. C.G. Betsumat, Dr. B. Suresh, Professor A.N. Santosh Kumar, Professor S.B. Kirde, all the devotees associated with Sutur Mutt, faculty members of Sri Jai Chamrajendra College of Engineering and sister institutions, dear students, ladies and gentlemen, I am feeling truly blessed and obliged to be with all of you at this inaugural function of Diamond Jubilee celebration of SJCE. I bow to His Holiness Jagat Guru Sri Shivratri Rajendra Mahaswami Ji, who blessed the mankind with His divinity and became the torch bearer of the education in independent India. With his blessings, JSS Mahavidyapeeth emerged as a divine center, imparting both knowledge and India's core civilizational values to the students. For almost 7 decades, JSS Mahavidyapeeth has been in the forefront of setting high standards for education, rendering distinguished services to the society, and enriching personality of young generation with proper sanskaras. Today, with blessings of revered Jagat Guru Desikendra Mahaswami Ji, JSS Mahavidyapeeth has become byword for value-based education with more than 300 institutions across the globe. Mahavidyapeeth is developing talents having wisdom of history, culture and ethos of Bharatvarsh, and they are equally equipped, skilled to handle the challenges of 21st century and become integral part of the future workforce. I am confident that in the years and decades to come, JSS Mahavidyapeeth will grow from strength to strength, adopting all the new developments, innovations, and technologies rooted in Indian ethos. Friends, in the last 8 years, we have seen the arrival on the world stage of a superpower India, the Bharatvarsh, that has resolved to regain its past glory and be the economic powerhouse and the driving force for all-round development of humanity. We are blessed to be born in India, the land which has produced the great scientists and saints. If you compare it with the rest of the world, surprisingly, you will not find a single country that was able to develop both scientific and spiritual aura. India is the only country which has been deeply concerned with the evolution of human consciousness as much as it has been for the new inventions. It has been deeply concerned to seek the truth and also be the truth. Our technological innovation journey has been as intense as our search for inner peace. And that is why I always believe that our spiritual heritage and our knowledge heritage is the real treasure. Last year, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji gave a clarion call to remove traces of colonial mindset and celebrate our roots, our heritage, with pride in this context. I was wondering what thoughts I can share with you all on this occasion. I have selected to share India prime mover of peace, prosperity and knowledge. भारतवर्ष शांति, समृद्धि और ज्ञान का वाहक है। इसी विषय पर मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं।
मित्रों, खोज भारतवर्ष की पहचान रही है। हमारे पूर्वज सदियों से ऐसी खोज के लिए प्यासे थे जो मानव समाज में शांति और समृद्धि स्थापित कर सके। पुरातन काल से भारतवर्ष एकमात्र ऐसी भूमि है जहां हर एक नागरिक की खोज कंस्ट्रक्टिव थी, डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। चाहे हमारा चिंतन हो, ऋषि मुनियों की तपस्या हो, वैज्ञानिकों चिकित्साविदों की खोज हो, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की प्रतिभा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित रही है। आज भी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भारत पूरी विनम्रता से इस बात का प्रयास कर रहा है कि वैश्विक उथल पुथल से किस प्रकार से संसार के 8 बिलियन नागरिकों को बचाया जा सके। G20 की प्रेसिडेंसी मिलते ही वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संदेश से हमने स्पष्ट कहा है कि आज भी अपनी प्राचीन परंपरा को कायम रखते हुए हम इस धरती पर मौजूद हर एक नागरिक के कल्याण के बारे में चिंतित हैं। हम जब भी परिवार के बारे में सोचते हैं तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारा यही इतिहास रहा है। कई बार लोग कहते हैं ठीक है, हमारा इतिहास समृद्ध था, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा न सोचते हुए हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर हम भारत को मात्र इतिहास और भूगोल के रूप में देखेंगे तो बड़ी गलती करेंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने मानव चेतना के परम शिखर को प्राप्त किया है, और इसलिए आज भी जब विदेश से कोई पर्यटक, टूरिस्ट चिंतन मनन के लिए यहाँ आता है तो वो कहता है कि इस मिट्टी में कोई ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है। इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि जिस समय भारतवर्ष में उपनिषद, वेद की रचना हो रही थी, उस दौर में पूरा विश्व एक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। सभ्य समाज का सबसे पहला बीज हमारी इसी धरा पर, इसी मिट्टी में अंकुरित हुआ, और हम सभी को, खासकर नई पीढ़ी को, इस तथ्य पर गर्व करने की जरूरत है। जिस समय बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, आदि गुरु, शिवयोगी स्वामी जी, तमाम साधु संत महात्मा समाज की दिव्यता, उसकी चेतना को जागृत कर रहे थे, उस समय विश्व के अलग अलग हिस्सों के इतिहास के पन्ने ज्यादातर खाली मिलेंगे आपको। 10वीं शताब्दी पूर्व जब परम पूज्य महास्वामी जी ने सुत्तूर मठ की नींव रखी थी, उस समय भारत की ख्यात एक ऐसे दिव्य केंद्र के रूप में फैल रही थी जिसका समाज और उसकी ऊर्जा शांति और समृद्धि की खोज में था। उपनिषद के दौर का एक भी वैश्विक साहित्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इतनी गहनता से मानव चेतना के उस परम बिंदु को छुआ है। आज भी उस दौर की कोई ऐसी पुस्तक विश्व में नहीं मिली जिसकी साहित्यिक आध्यात्मिक विरासत इतनी समृद्ध हो। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि सदियों से भारत एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य भारत का रहा है, कैसे परम शांति, आंतरिक एवं बाहरी समृद्धि के द्वारा समाज का कल्याण हो। उस दृष्टिकोण से देखें तो भारत एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जिसके प्राणों से हर इंसान के उत्थान की आकांक्षा हो, ऐसी अभिप्सा है। आज भी इंजीनियरिंग हो या मेडिकल कॉलेज हो, जब भी दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन आयोजित होते हैं, तब टीचर्स प्रार्थना करते हैं और विराट अस्तित्व से सहायता भी मांगते हैं। आज उनके विद्यार्थी की नई यात्रा शुरू हो रही है, एक नया सूत्रपात हो रहा है, इसलिए उसकी मदद करिए। यह संवेदनशीलता, संबंधों की गहराई इसलिए जीवंत है क्योंकि भारत सिर्फ इतिहास और भूगोल नहीं है, बल्कि इस दुनिया का हृदय स्थल है। यहाँ काफी विद्यार्थी भी हैं और मैं आज विद्यार्थियों से ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप से अलग हट करके कुछ बात करना चाहता हूं कि आखिर शिक्षा है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। और बहुत साधारण बात मैं करूंगा, व्यवहारिक बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है
कि विद्यार्थी इसको सुनेंगे भी। और I can tell you there is an optimism, there is an air of hope, and there is an air of purpose in the air. And I congratulate both Param Pujya Swami Ji, Vice Chancellor and faculty members for this Diamond Jubilee celebration. One thing I want to say, today is the Diamond Jubilee celebration of this institution. Let us reflect for a moment. What is it that makes the day so special? We have gathered here today. Why has Pujya Swamiji is here? Why is Professor Dhananjay Kumar is here? In spite of their busy schedule, not only been present here, but जब मैं वहाँ से चल रहा था तो मैंने स्वामी जी से आज्ञा ली कि स्वामी जी कितना समय है मुझे। स्वामी जी ने कहा कि जितना समय आपको लगे आप बोलिए। तो मैं धृष्टता नहीं करूंगा, मैं समय की मर्यादा समझता हूं और इसलिए मैं छात्रों से, विद्यार्थियों से विशेष रूप से आज बात करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा का ध्येय क्या होता है, शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, क्यों आज हम सब इस संस्थान में उपस्थित हैं ऐसे अवसर पर। अगर सिर्फ औपचारिकता निभानी होती तो मुझे कश्मीर से यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। परम पूज्य स्वामी जी को, प्रोफेसर धनंजय कुमार और ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। एक दूसरे को बधाई दे करके कार्यक्रम पूरा हो सकता था। और विशेष रूप से मैं छात्रों से कह रहा हूँ कि यहाँ उपस्थित होने का गहरा कारण है। शिक्षा की परिभाषा क्या है और उस अंदर में यह जो शब्द है, इस कॉलेज की भूमिका क्या है, इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भूमिका क्या है, ये समझ लोगे तो सार्थक हो जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे कहीं ज्यादा महान लोगों ने, जिन्होंने भारत का निर्माण किया है, कई बार ये बात कह चुके हैं। शिक्षा की बड़ी सरल परिभाषा है, बहुत ही सरल, और ये मेरी व्यक्तिगत परिभाषा है, इसे मैंने खूब आजमाया है। मैं जैसा बताया गया, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूं। आई एम ए मैथमेटिशियन ऑल्सो, एंड वी कांट प्रोसीड इन मैथमेटिक्स until we define and then give examples. So I have taken the liberty to define education and illustrate that with few examples and then place it in the context of what this college is achieving and what it should achieve and will achieve. So there is just one simple definition of education. It's a journey of the self. ये जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है, एंड इट्स ए जर्नी ऑफ द इनर सेल्फ। अंतस की यात्रा है, अंतर्मन की यात्रा है। हमें अपने अंदर टटोलना है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, उसे मैं अंतर्ध्वनि कहता हूं। उस व्यक्ति की विशेष अंतर्ध्वनि को जब पहचान हो जाती है या पहचान होने लगती है कि उसकी पुकार क्या है, वह ध्वनि क्या है, और जब इस संसार में, इस दुनिया में उसके अनुकूल वो कदम बढ़ाकर चलने लगता है तो वह प्रशिक्षित होने लगता है। और ये जीवन पर्यंत की यात्रा है। कुछ बिरले लोग हैं, स्वामी जी जैसे महान पुरुष, जिनको हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष होते हैं, बिरले होते हैं। हमारे जैसे, आप जैसे लोग, साधारण लोग इस जीवन यात्रा, इस यात्रा में जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। दिन प्रतिदिन हम चाहते हैं कि गत दिनों से, पिछले दिनों से थोड़ा बेहतर हो सके, किया जा सके, इस ध्वनि को ठीक से पकड़ा जा सके और बेहतर रूप से पकड़ा जा सके, और उसके अनुकूल कदम भी बेहतर ढंग से रखा जा सके। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं, बहुत सरल, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यद्यपि स्वामी जी ने मुझे कहा है कि आप चाहो जितना समय ले लो, लेकिन मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूं।
महात्मा गांधी आप सब नाम से परिचित हैं। बहुत कम आयु में 8 वर्ष की आयु थी उनकी, उनको ध्वनि का ज्ञान हो गया 8 वर्ष की आयु में। और ऐसे नहीं हुआ एकाएक कि रात को सो के उठे और सुबह उनको ज्ञान हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देयर वॉज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। द वर्ल्ड अराउंड अस is full of stimuli. Remember this. I want students to understand that this whole world is a university. इसको मान के चलिए आप, हर एक अनुभव एजुकेशन होता है और एजुकेशन का अनुभव होता है, शिक्षा का ही ये अनुभव है। गांधी जी को कैसे आभास हुआ कि उनकी अंतर्ध्वनि क्या है? 8 वर्ष की आयु में स्कूल में पढ़ते थे, एक नाटक देखने गए थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उस नाटक ने उनको इतना प्रभावित किया कि उनकी ध्वनि जाग गई। और जब घर आए तो शीशा के सामने उस नाटक के जितने भी डायलॉग्स थे उनको दोहराते थे, और उस डायलॉग्स को दोहराते हुए उन्होंने शीशा के सामने स्वयं से प्रतिज्ञा की। इतना छोटा बालक प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, लेकिन जीवन पर्यंत मैं सत्य के साथ ही खड़ा रहूंगा। अपनी अंतर्ध्वनि को पहचाना और बापू ने प्रतिज्ञा किया। ये होती है अंतर्ध्वनि की पुकार, जिसको उन्होंने समझा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई किए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, और अस्पृश्यता को हटाया। अनेक बातें कही जा सकती हैं, लेकिन सत्य की खोज और उसकी छत्र छाया में ही गांधी जी ने सब कुछ हासिल किया। गांधी जी सत्य की खोज में थे, उसके अधीन थे, उसके अनुकूल चलना चाहते थे, उसके अनुकूल आचरण करते थे, और जीवन के हर पहलू की जांच भी उसी आधार पर करते थे। यही था उनका जीवन और कुछ नहीं था। कि जितनी चुनौतियां आईं, कई बार परीक्षा ली गई, लेकिन सत्य को जीवन में कभी नहीं त्यागा उन्होंने। तो महात्मा गांधी ने अंतर्ध्वनि को पहचान लिया और राष्ट्रपिता बन गए। एक और चीज मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, कौन कहेगा कि गांधी जी एजुकेटेड नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे? Who will have the temerity to say that Mahatma Gandhi was not an educated person? But did you know that he did not have a single university degree or qualification? This fact, I think, some people may surprise, but it's a truth. There are many of us who think that Mahatma Gandhi had a law degree. No, he did not. His only qualification was a high school diploma. He qualified to practice law. He did not have a law degree. He had no degree at all. Yes, just look at him. Just look at how educated he was. Father of the nation, Rashtrapita Mahatma Gandhi. So, let me also make it clear to you that do not only be indulging in this formal connection with a degree and what you think is education. Mark Twain very famously said, "I did not allow my schooling to interfere with my education." Think about this. He did not allow his schooling to interfere with his education. कबीर, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। जब मैं पीछे आकलन कर रहा था तो 1000 से ज्यादा पीएचडी कबीर पर हो चुकी है। इतना गहरा प्रभाव है कबीर का भारत के दर्शन पर, साहित्य पर। और आप जानते हैं, कबीर शिक्षित नहीं थे, इलिटरेट थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ही वॉज इलिटरेट, उनको लिखना भी नहीं आता था, पर उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि को पहचाना, पकड़ा उसको। वे ईश्वर की खोज में थे और उसी में लीन हो गए। हर तरह की कीमत चुकाई उन्होंने। इतनी पीएचडी हम लोग करते हैं कबीर पर, एक अनपढ़ आदमी पर। अंतर्ध्वनि पहचाना उन्होंने
और कबीर कबीर हो गए। तेंदुलकर, सब लोग नाम जानते हैं तेंदुलकर का। 10 वर्ष की आयु में तेंदुलकर, पहले वो पिंग पोंग खेलते थे, उसमें ज्यादा रुचि थी उनकी। अचानक एक दिन उनको अपने अंतर्ध्वनि का ज्ञान हो गया, उनका वास्ता क्रिकेट से हो गया। धोनी जाग गई और उन्होंने तय किया कि हमें क्रिकेट खेलना है, और उस दिन से क्रिकेट में लीन हो गए। प्रतिदिन घंटों प्रैक्टिस करते थे। शनिवार हो, रविवार हो, होली हो, दशहरा हो, कोई परवाह नहीं की उन्होंने। उनकी भी परीक्षा ली गई, हर तरह से ली गई। बहुत साधारण घर से थे सचिन तेंदुलकर, लेकिन कभी भी क्रिकेट को नहीं त्यागा। कठिनाइयां बहुत आईं, यहां तक कि एक वक्त था उनके जीवन में उनके पास एक ही पतलून थी। स्कूल भी पहन करके जाते थे, और जब घर आते थे तो माँ उसी पतलून को धोती थी और भीगी पतलून पहन करके ही फील्ड पर जाकर के बैटिंग प्रैक्टिस करते थे। इसको कहते हैं समर्पित कर देना अपने आप को। धोनी की खोज में समर्पित कर दिया तेंदुलकर ने, तभी प्रशिक्षित हुए, और प्रशिक्षित ही नहीं हुए, भारत रत्न की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। आप जानते हैं तेंदुलकर के पास भी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनका आचरण देख लीजिए। लुक एट द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। भारत रत्न है, लेकिन हैज ही एवर सेड एनीथिंग दैट इज डिसऑनरेबल or controversial or hateful? No. He conducts himself like a thoroughly educated man because he has discovered, he has anchored to his drum beat. I call it drum beat within. तो शिक्षा उसी को कहते हैं जो अनुभव के आधार पर आपको आपकी अंतर्ध्वनि से परिचित करा दे। So what is the role of this college or this technical university? What should this university do? It must enable each one of you students to somehow begin to understand your inner self. What is your drum beat? To understand what it says, and then start adhering to it, start practicing it. इसी को प्रार्थना भी कहते हैं, और इसी को धर्म निभाना भी कहते हैं। धर्म की परिभाषा उस संकीर्ण दायरे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो रिलीजन है। मैं समझता हूं कि धर्म को अगर अंग्रेजी में हम कहें तो धर्मा इज दैट विच बाइंड्स, जो बांधता है हम सबको, वही धर्म है। तेंदुलकर बंधे थे क्रिकेट से, अमिताभ बच्चन बंधे थे एक्टिंग से, महात्मा गांधी बंधे थे सत्य से, उसी तरह से रामानुजम बंधे थे गणित से। अनेक लोगों ने रामानुजम का नाम सुना होगा। उनके पास भी कोई डिग्री नहीं थी, स्कूल भी पास नहीं कर पाए थे, 10th क्लास में पढ़े, पास नहीं कर सके, कोई डिग्री नहीं मिली, लेकिन गणित को उन्होंने कभी नहीं त्यागा, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि को पहचाना और बचपन से गणित से जुड़े तो जीवन पर्यंत गणित से जुड़े रह गए। तो इस कॉलेज को क्या करना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए और क्या प्रधान ध्येय होना चाहिए, और उपलब्धियां कैसे हासिल हो सकती हैं? यू शुड बी गिवन ए प्लेटफॉर्म दैट अलाउज ईच इंडिविजुअल थ्रू हिज और हर एक्सपीरियंसेस टू बिगिन टू डिस्कवर हिमसेल्फ or herself. And when you start discovering, then the university should allow you to start practicing the belief, that belief. और मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि आज ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, और यहां स्वामी जी इस बात को पूरी तरह से समझते हैं, मंच पर बैठे हुए लोग समझते हैं, और इसीलिए किस तरह से कॉपरेशन करके इनलाइटेंड एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए। मैं आशावादी और उम्मीद रखता हूं कि यहां इस संस्थान ने बहुत लोगों का भला किया है, और आने वाले समय में भी बहुत सारे लोगों का भला होगा। और इसलिए आज यहां उपस्थित मैं व्यक्तिगत रूप से हूं कि मैं भी भागीदार बन सकूं, किसी तरह से मैं भी सीखूं, मेरा भी उद्धार हो जाए।
कुछ सीखने से ही कबीर बने, महात्मा गांधी बने, और उन लोगों ने हमारे लिए बहुत मंत्र छोड़ा है। बड़े सरल मूल मंत्र हैं, इसको समझ जाइए आप। और इसमें अध्यापकों का भी मैं सहयोग चाहूंगा। गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में एक बड़ी गहरी और सरल बात कही थी, सटीक बात कही थी। और याद रखिएगा एक बात, गांधी जी कभी ऐसी वैसी बात नहीं करते थे। He would never utter a word which was to be said lightly, and he would never utter it unless he had experimented with it and made his own discoveries and inferences. That's why his autobiography is called Experiments with Truth. तो शिक्षा के संबंध में गांधी जी को अधिकार क्या था? कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब उनके पास डिग्री नहीं थी तो ये अधिकार उनको किसने मिला? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब दक्षिण अफ्रीका में थे बापू, तो वहां भी एक स्कूल उन्होंने स्थापित किया। गहरे रूप से उस स्कूल के संचालन से जुड़े थे, बहुत अच्छे से गहराई से उस स्कूल को चलाया, खुद भी सीखा उन्होंने उससे बहुत कुछ, और उसके बारे में काफी लिखा है गांधी ने। भारत आए तो एक विश्वविद्यालय कायम किया, गुजरात विद्यापीठ, जो आज भी एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है। इट्स अ फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी। देन he went to Varda and he set up a polytechnic for women. And the governing body of that polytechnic were India's foremost scientists, Jagdish Chandra Bose, C.V. Raman, all of them were in the governing body. कई लोग कहते हैं कि गांधी साइंस के खिलाफ थे, टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। Don't believe these things. Discover for yourself his greatness, and that will help you. So what did Gandhi ji say about education? After so many experiments, he said, in education, what you do with your hands will enter your heart. जो हाथ से आप करते हैं, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी, वही आपके हृदय तक पहुंचता है। मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी प्राचीन काल से भारत में हम सब इसका अनुभव करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। व्हाट डज इट से? नॉलेज विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस। भारत इस बात को गहराई से अनादिकाल से जानता था। इफ यू लुक एट ऑल आवर उपनिषद्स, दे टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम। एक ऋग छंदयोग उपनिषद में एक जिक्र आता है एक पात्र का, ऋग। He was a potter. Rig was a potter. He had no qualification, but he was so wise, so educated, and these are historic tales. Don't take them to be just tales. These are tales of history. Rig के पास उस समय के राजा तक आते थे, सीखने के लिए आते थे। तो एक अनपढ़ व्यक्ति इतना प्रशिक्षित था कि राजा को आना पड़ता था उसके लिए। तो मैं क्या चाहूंगा? लेट दैट हैपन। लेट द डोर्स एंड विंडोज ऑफ दिस कॉलेज बी ओपन एंड लेट देयर बी क्रॉस करेंट्स बैक एंड फोर्थ ऑफ नॉलेज, enlightenment and education, which is what this institution is already doing, which you are already embarking on. And I invite you because other universities are yet slow to the task. So this is the use of hands. ध्यान से समझिए इसको। सारा ज्ञान बेकार है अगर उसका प्रयोग करना हम नहीं जानते। और इसलिए ईसा मसीह 12 वर्ष की आयु तक अप्रेंटिस किया उन्होंने। ही वॉज अप्रेंटिस टू हिज फादर एज ए कारपेंटर। हाथों के प्रयोग से कारपेंटरी करते थे। पैगंबर साहब चरवाहा थे, मत भूलिएगा कभी इसको। गुरु नानक जो भी उनके साथ जाता था उनका शिष्य बनता था। गुरु नानक अनिवार्य कर देते थे कि उनके साथ चलो, खेत पर काम करो। न्यूटन गिफ्टेड हाथों का प्रयोग था उनके पास। आइजक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, आइजक न्यूटन।
उनकी सारी जो डिस्कवरीज है लाइट की, इनवर्स स्क्वायर लॉ केम टू हिम थ्रू लाइट, और कैसे अपने हाथों से उन्होंने यंत्र बनाए, इनोवेशन किया, और उन यंत्रों के आधार पर इनवर्स स्क्वायर लॉ लाइट को समझा, फिर तुक्का लगाया कि ग्रेविटी भी इसी तरह फैलती है लाइट की तरह। He made an educated guess that gravity also spreads like light in every direction in exactly the same way, guessed the inverse square law also for gravity, and then mathematically proved that that is how the law of gravitation. So ये हाथों के प्रयोग से ही कर पाए थे न्यूटन। माइकल फैराडे दूसरी क्लास से आगे नहीं पढ़े, लेकिन माइकल फैराडे, भगवान की कृपा थी, हाथ था, हाथ को पहचाना था, और कबीर ने तो कहा भी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। फैराडे पर भी ईश्वर का हाथ था। गरीबी में इतना बुरा हाल था कि उनके पिताजी ने कहा कि कहीं दुकान पर लगा देते हैं, अप्रेंटिस करे, 2 पैसा कमाएगा तो भोजन मिलेगा, और संजोग से बुक बाइंडिंग शॉप पर उनको लगा दिया उनके पिताजी ने। जमाना दूसरा था, आज का तकनीकी युग नहीं था। हर पन्ने को ठीक से पढ़ना होता था, सटाना होता था उसे, और इस काम में वो इतने निपुण हो गए कि पन्ना सटाते भी थे और पढ़ते भी थे, और पढ़ते पढ़ते विज्ञान की जिज्ञासा उनकी इतनी बढ़ गई, उनकी अंतर्ध्वनि उन्हें पुकारने लगी कि विज्ञान से जुड़ो। एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज एज एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर, एंड ही वॉज ओनली सेकेंड स्टैंडर्ड पास। इसलिए हाथों का प्रयोग करो, अवश्य करो, नॉलेज को प्रैक्टिस में लाओ। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 100 वर्ष पहले कहते हैं, he laments that education in India has been confined to the 4 walls of the classrooms and the blackboard, and it seems to have no more connection with the world. We must go back to the way India was. And why do I say that? Because it served India well. This business of making education and the real world connected, so that knowledge was in action, and action gave rise to knowledge. Knowledge gave rise to action, and action gave rise to knowledge. And the second rule, transdisciplinary. Please understand, subjects cannot and should not be learnt in isolation. If Newton was good in mathematics, he was just as good at physics. He was just as good at the use of his hands. He was also very good at composing. He was a great communicator. So you need to have these skills. You cannot do this by just lying in bed. आइंस्टाइन, आप सबने नाम सुना है उनका, जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया। सब्जेक्ट इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। Albert Einstein was a gifted hands-on experimentalist. Did you know this Einstein? What did he do? He invented the world's first modern automatic camera. Can you believe that? He was so good with his hands, he also invented the world's first modern safe refrigerator. बहुत कम लोग जानते हैं। और कहां से आइडिया आया उनको? उनके फादर, he used to run an electromagnetic goods factory. Father fell ill. Einstein had already got a PhD in physics, but because his father was ill, he decided to manage the factory, and he managed it so well that he almost gave up his career in physics. So he was a practical man. He never said, no, I have a PhD in physics और मैं ये फैक्ट्री नहीं देखूंगा, इस फ्लोर शॉप में नहीं बैठूंगा. And he fixed electromagnets, and through that
his ideas on gravitation evolved. Look at Gregor Mendel. ये बहुत बड़ा उदाहरण है मेंडल का। आज अगर पूरी दुनिया में क्रांति आई है, अगर आज हम कोरोना वायरस पर विजय पा सकें, तो इसका मूल कारण हमने वैक्सीन डेवलप की और उसमें जेनेटिक्स का प्रयोग किया। इसके पहले वैक्सीन में जेनेटिक्स का प्रयोग नहीं होता था। We used to find a virus and weaken it. फिर उसको लगाते थे, कुछ हद तक सफलता मिलती थी, समय लगता था 5 साल 7 साल वैक्सीन बनाने में, लेकिन ये जो आरएनए वैक्सीन आई है, जिन्होंने थाम दिया है कोरोना की रफ्तार को, उसकी प्रगति को, पूरी दुनिया को बचाने में जिसने सबसे ज्यादा मदद की है, all of them have been invented through genetics. Who invented genetics? Mendel. And how did he do that? I want the students to understand genetics. ये जो लॉज हैं मेंडल ने जो डिस्कवर किए हैं, उसका मूल कारण क्या है? He was good at botany, he was good at mathematics, and he was good at gardening also. अपने हाथों से हजारों पौधे लगाते थे, उनकी गणना करते थे, डेटा में भी निपुण थे, काम करते थे, और 2 वर्षों में उन्होंने जेनेटिक्स को समझा, जीन्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं इस बात को उन्होंने समझा, और उससे पूरी दुनिया में जो क्रांति आई है, इट्स नॉट जस्ट द वैक्सीन्स, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द होल वर्ल्ड. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेक योर एजुकेशन प्रैक्टिकल. और अब तीसरी बात कह के खत्म करूंगा. थर्ड थिंग, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. हम लोग आइसोलेशन में पढ़ने लगे. बगल का बच्चा हमसे कुछ ना सीख ले, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसके नंबर मुझसे ज्यादा आ जाएंगे. यूनिवर्सिटीज नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. इतना हम उलझे हैं नंबरों में, इतना नंबर आ जाए, ज्ञान की बात ही नहीं हो रही है. नंबर, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं काम नहीं आते. जितने लोगों को मैंने देखा है जो जीवन में सफल हुए हैं, all of them have hardly cared for what marks. Get good marks, fine. They don't get good marks, fine. Do what you believe in by discovering your drumbeat and God will listen. फिर ईश्वर बंध जाते हैं. हमारे पुराणों में बड़ी बेहतरीन कथा है. मैं धार्मिक दृष्टिकोण से इस बात को नहीं कह रहा हूं. एक कसाई था, वो मानता था कि उसका धर्म है कसाई. रोज निष्ठा से, लगन से वो अपना धर्म निभाता था. इतनी निष्ठा से कि अंत में नारायण स्वयं अवतार लिए और उन्होंने उसका उद्धार किया, उसको पार कर दिया. हम लोग तो भटक रहे हैं, लटके हुए हैं अहंकार में कि हमारे पास ये डिग्री है, हमको ईश्वर कैसे मिलेंगे. उसको मिले और पार हो गया वो. क्यों? क्योंकि उसने अपना धर्म निष्ठा से निभाया. ये प्रार्थना मान के चला, इसे प्रार्थना मानकर चला. जो आप उस स्वधर्म को पहचानेगा, उसको निभाएगा. मैं कहना चाहता हूं कि यही साधन है, इसी से आप सिद्ध होंगे. जैसे योगी की यात्रा होती है, उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि अपने धर्म का निर्वहन अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे. और याद रखिए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत नहीं है. 5, 6, 7, 8 लोग किसी समाज की समस्या को चुने, उससे जुड़े. ये मत सोचिएगा मुझे पूरे समाज का उद्धार करना है, आज मैं सब कुछ कर लूंगा. स्टार्ट मॉडेस्टली, छोटी छोटी चीजें लीजिए. इतने प्रयोग आज हो रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में. मैं समझता हूं कि उससे हमें समझने की जरूरत है. और इसमें यही बात तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी नई जनरेशन को एक नई गिफ्ट दी है. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट से इतना लाभ होता है, लेकिन याद रखिएगा, मैंने पहले कहा कि कॉम्पिटिटिव मत बनिए, नंबर के पीछे मत मरिए. मैं तो कहूंगा कि क्रांति आ सकती है, नहीं तो पूरा देश
आज एग्जामिनेशन में ही उलझा हुआ है। रोज एक परीक्षा होती है, रोज खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, कहीं पेपर टाइम से नहीं पहुंचा, रोज कुछ न कुछ नाटक हो रहा है। किस लिए? एक रटा हुआ एग्जाम, चाहे आईआईटी का हो, मेडिकल का हो, सीयूईटी का हो, हम सभी उसी में उलझे हुए हैं। उससे बाहर आने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं ये विश्वविद्यालय इससे बाहर निकलेगा और जो एनईपी चाहती है उस दिशा में काम करेगा। समाज की चुनौतियों, आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता है। हैंड बेस्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग कीजिए, परंतु कंपटीशन से बाहर आइए। बी हम्बल, नॉलेज तभी आती है जब घमंड, प्राइड चला जाता है। मस्तिष्क में जब तक घमंड रहेगा जगह नहीं बनेगी। और मैं इसीलिए तो कबीरदास ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। इस अहंकार से बचने की जरूरत है। अहंकार विहीन जो बनेगा, ज्ञान की प्राप्ति उसी को होगी। और जिस चीज में आपकी आस्था है उसे धर्म मानकर उस रास्ते पर चलिए, वो मजबूर होकर आएगा और वही उद्धार करेगा। सो डू व्हाट, एंड माय फाइनल थिंग, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बातें भी नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, ये डार्विन ने कहा, न्यूटन ने कहा, मेंडल ने कहा, ईसा मसीह, पैगंबर साहब, गुरु नानक देव, सबने कहा राष्ट्र का हित करो। पहले भारतवासी बहुत ऐसा काम करते थे। मैं आपको केवल 2 उदाहरण दूंगा और मुश्किल से अब मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। ज्यादा हो रहा तो मैं बंद कर दूं। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, मेंडल, एंगस मेंडल उनका नाम था, एंगस मेडिसन, और उसने बड़ी मॉन्यूमेंटल स्टडी की, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई रिक्वेस्ट यू पे अटेंशन टू दिस। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंगस मेडिसन, it's a monumental study, and till today no one has disputed it. It's based on data from the 1st century AD till the end of the 17th to beginning of the 18th century. पूरा डेटा के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। एंड व्हाट डज ही सी, व्हाट डज ही से? पूरे सदियों के लिए 1st सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक इंडिया डोमिनेटेड ग्लोबल जीडीपी। पूरी दुनिया में हम सबसे आगे थे। कारण क्या था? बिकॉज इंडिया वॉज ए नॉलेज इकोनॉमी। आज बहुत बात हो रही है इसकी, और इसके लिए भी 2 ही उदाहरण देकर मैं खत्म करूंगा। उस काल में यूरोप के पानी के जहाज अपना रास्ता नहीं खोज पाते थे, भटक जाते थे, नष्ट हो जाते थे। और उस समय आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कह रहे हैं कि कोई विज्ञान के पास विकल्प नहीं है टू फाइंड पोजीशन एट सी। दिस इज आइजैक न्यूटन टेलिंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस युग में कहीं 100 वर्ष पहले से भारत के पानी के जहाज समुद्री रास्ता तय कर पाते थे, दूर अफ्रीका से भी आगे निकल जाते थे और दूसरी तरफ भी जाते थे, क्योंकि गणित के आधार पर हमारे पास एक यंत्र था, and it was based on logarithm scale coming out of knowledge institutions of India, which allowed our ships to find latitude at sea hundreds of years before Newton. प्रमाण और देता हूं। सामान्य रूप से थोड़ा हमारे यहां इतिहासकारों ने पता नहीं किस वजह से इन बातों को छुपाया या नहीं लिखा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो शिक्षण संस्थान है वो जरूर इन बातों पर ध्यान देगा। सो लेट मी टेल यू, आई हैव चेक्ड दिस फैक्ट। हाउ डिड आई लर्न अबाउट इट? फ्रॉम ए हिस्टोरियन इन हार्वर्ड, देन ए डिस्टिंग्विश्ड हिस्टोरियन इन पोर्तुगाल। व्हाट? द फैक्ट इज जस्ट दिस, Vasco da Gama did not discover the sea route to India.
वो तो हम भारतीय लोग कब का खोज रखे थे, कहां कहां चले जाते थे। मैंने बताया आपको, साउथ अफ्रीका के आगे चले जाते थे, और इसके प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है। एक छोटा सा द्वीप है मैडागास्कर, उसका नाम सोक्रोटा भी है। संस्कृत का नाम था सुखदंत द्वीप, डिस्टार्ट होके वो सोकोटा हो गया। उसकी गुफाओं की दीवारों में कभी जाइए, देखिए, भारत के नाविक वहां गए, sailors, they have been scribed on the walls in Pali, Brahmi, Sanskrit, dating back to the time of Jesus Christ. Their adventures on their sailing from India and stopping there for supplies and going beyond. तो भारत तो ये सब तब खोज चुका था। कैसे खोजा? क्योंकि हमारे जो ज्ञान और विज्ञान की संस्थाएं थीं, उन्होंने गणित का समाज के हित में उपयोग किया। ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे यहां पता नहीं कैसे इसे छुपाया गया। प्लिनी प्री क्राइस्ट रोमन हिस्टोरियन थे, लिखते हैं, इंडियन शिप्स कम हियर एंड टेक अवे ऑल आवर गोल्ड। वो कह रहे हैं कि भारतीय पानी के जहाज आते थे और हमारा पूरा सोना लेके चले जाते थे। तो भारतीय चुराते तो थे नहीं, बिकॉज वी यूज टू कम देयर लैरन विद प्रोड्यूसेस फ्रॉम इंडिया एंड दे वर सो एक्यूरेट, दे वुड कम एंड गो बैक सेफ एंड साउंड। और भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए हम सोने की चिड़िया बने। बहुत कम लोग जानते हैं ईसा मसीह से कई सौ वर्ष पहले केवल प्लास्टिक सर्जरी नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी का भी आविष्कार हमारे देश में हुआ था। कई लोग कहेंगे कि हवा में है, ऐसी चिकित्सा, ऐसी शल्य क्रिया कब थी यहां पर, ऐसे यंत्र कब बने इस देश में? मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में नहीं। ये सारी आयुर्वेद की पुस्तकें मुझे जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, वहां मिली। और वो क्या कहती है पुस्तक? भारत के आयुर्वेद की पुस्तकों का अनुवाद किया उन्होंने, और जिसमें वो बताते हैं कि ऐसे सूक्ष्म यंत्र कैटरेक्ट सर्जरी के लिए ये भारत ने बनाए, भारत ने आविष्कार किया, और उसका निर्यात होता था। हमारे यहाँ वुड स्टील का आविष्कार हुआ, भारत में वुड स्टील का आविष्कार ईसा मसीह के काफी पहले कर लिया गया था, और वो एक्सपोर्ट होता था। यहां तक कि एक ऐतिहासिक तथ्य आपको बताना चाहता हूं। जब सिकंदर यहां आए, ये इतिहास के लोग नहीं बताएंगे आपको, माफ कीजिएगा, मैं इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन इतना समझता हूं, जब सिकंदर आए तो ब्यास नदी पार नहीं कर पाए। कारण जानते हैं क्या? क्यों नहीं पार किया उन्होंने? उनके दो जासूस थे, और उन जासूसों को उन्होंने लगाया था कि जाकर के उधर की तैयारी देखो मगध सेना की। एंड दे केम बैक एंड टोल्ड देम दैट दे हैव नेवर सीन एन आर्मी सो वास्ट एंड सो enthusiastic to fight with you. There were thousands of elephants, thousands of horses, and thousands of foot soldiers, all eagerly waiting to give you battle. होश उड़ गया सिकंदर का, वहां से मनोबल टूट गया। सिकंदर लौट गए, ब्यास नदी पार नहीं किया उन्होंने। मगध की सेना मैंने जिक्र किया, जब वो लौट रहे थे, मनोबल उनका टूटा हुआ था, तो पोरस पुरराज उनको मिल गए, और वहीं पोरस से उनकी दोस्ती हुई, और पुरराज ने उन्हें कुछ गिफ्ट किया, भेंट किया, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुए। और जानते हैं वो गिफ्ट क्या था, वो भेंट क्या थी? He gave him ignots, large collection of ignots of woods steel. वो क्यों खुश हो गए? क्योंकि इसी स्टील से तलवार बनती थी। दुनिया के देशों में जहां भी सबसे अच्छी तलवार बनती थी, उसका स्टील भारत से जाता था, और भारत ही एक्सपोर्ट करता था, और बदले में सोना लाता था। ये हमारे ज्ञान और विज्ञान की संस्थाओं ने खोजा था। दिस इज वाई we were knowledge economy. And what is the power of knowledge economy?
2012 में एक अध्ययन हुआ और बड़ी गहरी स्टडी है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। इस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के बाद जो जानकारी आई, उस कैंपस को देखेंगे आप, उसके इर्द गिर्द जो स्टार्टअप्स और जो कंपनी चलती हैं, जानते हैं उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वहां की जीडीपी में क्या है? $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, जस्ट वन यूनिवर्सिटी। कोरोना के दौरान मेरे एक मित्र ने मुझे बताया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से जुड़े हुए हैं, वहां प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन ने $6 बिलियन की वृद्धि की है कोरोना के दौरान ह्यूस्टन की इकोनॉमी में। ये होता है नॉलेज इकोनॉमी का पावर, ये होती है नॉलेज इकोनॉमी की ताकत। अब हमको सोचना चाहिए कि हमारी संस्थाएं तो सिर्फ नोट्स देती हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती हैं, अब वर्चुअल मोड और कंप्यूटर पर भी पढ़ाने लगे हैं लोग। बच्चा किस काम का बनेगा ये हम सोचते हैं या नहीं विद्यार्थी की सोचेंगे किस लायक बनेगा, उसको कितना आता है। और हर एक व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वो रामानुजम बन जाए, गणितज्ञ हो जाए। हिंदी पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रेमचंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र बन जाए। व्यवहारिक ज्ञान वो सीखे, मुझे लगता है इसकी कोशिश हम नहीं करते हैं। भारत में साइबर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आता है, मैक्सिमम इजराइल से है और कुछ चाइना से आता है, बाहर के देशों से आता है। और हम गणित पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को रामानुजम बनाना चाहते हैं, और करोड़ों रुपया देश का बर्बाद हो जाता है। और उसके पीछे बहुत सिंपल अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो गणित हाई स्कूल लेवल की है, जो मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल की है। अगर वही हम पढ़ावें कोडिंग के आधार पर, देश करोड़ों रुपया कमा सकता है। जब दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गणित को आईटी से जोड़िए, समाज की चुनौती से विद्यार्थी जुड़े, तब लाभ होगा भारत का। भारत तब नॉलेज इकोनॉमी बन पाएगा। मैंने ज्यादा वक्त लिया, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में गुरु को ही सर्वोपरि माना जाता है, और जिस दिन सद्गुरु मिल गए उस दिन बाकी किसी उपाय की जरूरत नहीं होती है। और इसीलिए आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस स्थान पर आने का अवसर मिला है। उर्दू की एक पंक्ति है कि तूफान उठा दिए हैं, तूफान उठा उठा दिए हैं जब इश्क ने हौसले किए। इंसान के अंदर जब हौसला आता है उस दिन गुरु के प्रसाद से उसके अंदर नई प्रज्ञा, नई चेतना का जन्म होता है। मेरी कामना है पूज्य स्वामी जी के का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सदगुरु की अखंड धारा देश का और समाज का उद्धार करती रहे। फिर से मैं डायमंड जुबली की हार्दिक बधाई देते हुए, और आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए साधुवाद देते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।